السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبیاء من نبی الا اوتی من الآیات البینات آمن علیہ البشر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائی، اگلی چند جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ولادت سے لے کر کے غزوات تک الحمدللہ تفصیلی خطابات ہوئے ہیں. حسب وعدہ اگلی جمعہ، اس جمعہ میں اخلاق نبوت، تعلیمات نبوت کے بعد اب دلائل نبوت یعنی معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا معجزات امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمال میں تذکرہ کر رہے ہیں. معجزہ یہ باب افعال سے اس میں فاعل مؤنث ہے. اعجز یعجز اعجازا فهو معجز ومعجزۃ. اعجز عاجز کر دینا، عقلی اور مادی تمام تر طاقتیں کسی غیبی عجوبے پر، اچنبے پر انسان کی طبیعت کو ہرا کر کے اس کے دل کو منوا لے. لغتاً عاجز کر دینے والا، ہرا دینے والا جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. دلیل نبوت، معجزہ یہ دلیل نبوت، مدعی یہ نبوت ذات آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,28,000 انبیاء اور 313 رسول اللہ کی طرف سے معجزات لے کر کے آئے. تو مدعی یہ نبوت ذات، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ رسول ہوں، عادت کے خلاف انہونی چیز ان کے ہاتھوں ہوتی ہوئی نظر آئے، اس کو شریعت کی بول چال میں معجزہ کہتے ہیں. مدعی یہ نبوت ذات جو نبوت کا دعویٰ دائر کرے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح نہیں، اس خبیث لعین کی طرح نہیں،
جو اس کی فہرست میں ایک لمبی تعداد ہے. نبوت کسبی چیز نہیں ہے. آدمی وظیفے کھینچ کر نبی بن جائے, آدمی دعویٰ دائر کر کے نبی بن جائے, آدمی پارٹی بنا کر کے نبی بن جائے, نہیں نہیں. اللہ کی طرف سے یہ چیز وہابی ہے اور انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ منتخب طبقہ ہے. سیاست میں لوگ منتخب کرتے ہیں, اور اب تو پیسہ منتخب کرتا ہے, لوگ بھی نہیں کرتے ہیں. پیسہ پھینکو اور تماشے پر آدمی آ جاتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. ان تقسیمات کو سمجھو, پتہ چلے گا. نبوت کسبی چیز نہیں, وہابی چیز ہے. انبیاء کے ورثہ قیامت تک محنت کریں گے روحانی علم کے حصول کے لیے, اور وہ بھی موہب من اللہ ہے. اللہ جنہیں منتخب کریں گے اپنے علم کی حفاظت کے لیے, جن مقدس سینوں کا انتخاب کریں گے, وہی سینے اللہ کے کلام کو محفوظ کر سکیں گے. ورنہ مدرسے میں داخلے شوال المکرم میں تو ہزاروں کے ہوتے ہیں, لیکن 15 دن مہینے میں کافی لوگ چلے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا یہ موہوب من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک عطیہ ہے اور ایک ہدیہ ہے, جو انتخاب اللہ کی طرف سے ہے. منتخب من اللہ طبقہ ہے یہ. تو معجزہ کہا جاتا ہے مدعی نبوت ذات کے ہاتھوں عادت کے خلاف انہونی چیز ہوتی ہوئی نظر آئے. شریعت کی بول چال میں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان کرامات الاولیاء حق کما ان معجزات الانبیاء حق. اولیاء کی کرامت حق جیسے انبیاء کے معجزات حق ہے. کرامت متبع شریعت و سنت شخص, شریعت اور سنت کا تابعدار شخص, ان کے ہاں انہونی چیز ہوتی ہوئی خدا صادر کر دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن ہندو پنڈت کے ہاتھ اگر انہونی چیز ہوتی ہوئی چیز نظر آ جاوے تو اس کو کرامت نہیں کہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, ارحاسات ہوتے ہیں, اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک انسان مجاہدات کی کثرت سے اور نفس کی اصلاح کے ذریعے سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہیں, تو کرامت الگ چیز ہے, معجزہ الگ چیز ہے. انبیاء کی معجزات حق, اولیاء کی کرامت حق. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کی. جیسے حضرت سلیمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی. زمین پر چلنے والی چونٹی کیا بولتی ہے سلیمان سمجھ جاتے تھے. سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان کے ہاتھ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, تانبے کو اللہ نے موم بنا دیا تھا. ان کے بعد حضرت داؤد کے ہاتھ بطور معجزہ لوکھن کو اللہ نے لوہے کو موم کر دیا تھا. حضرت ابراہیم کے لیے نمرود کی آنکھ کو خدا نے باغیچہ بنا دیا تھا. حضرت صالح کے لیے قوم کے فرمائشی مطالبے پر پہاڑ سے زندہ گردن اٹھنے خدا نے نکال دی تھی 9 مہینے کی. اس کا بیان قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں ہے. ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام داہنا ہاتھ بائیں بغل میں ڈالتے تھے اور یوں نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکدار ہو جاتا تھا. جب واپس ڈال دیتے تھے تو اصلی حالت میں آ جاتا تھا. حضرت موسیٰ لاٹھی جب زمین پر ڈالی تھی فرعون کے محل میں تو کہیں جان
कुरान ने उसकी 3 सिफात बयान की। कहीं वो दौड़ता हुआ सांप बन गया, कहीं वो अजदहा बन गया, कहीं वो नाग बन गया। 3 सिफात कुरान ने उसके बयान किए। जादूगरों की जादू के सांपों के मुकाबले में ये लाठी जमीन पर डाली तो 72,000 जादूगरों के सांपों को ये लाठी निगल गई। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फतनफुकु फीही फयकूनु तैरन बिइذनिल्लाह, और इसमें यूं फूंक मारते थे तो वो पक्षी हवा में उड़ता था। हजरत ईसा तुबरिहुल अकमह वल अबरस व तहयल मौता बिइذनिल्लाह, कोड़ी पर हाथ फेर देते थे वो अच्छा हो जाता था, अंधे पर हाथ फेर देते थे वो अच्छा हो जाता था। अकमह अबरस इनको अच्छा कर देते थे। कब्र पर खड़े रह गए, कुम बिइذनिल्लाह, मुर्दा बाहर आ जाता था। यह हजरत ईसा के मौजिजे थे। तो हजरत दाऊद के लिए लोहे का नर्म हो जाना और इनसे यामलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमाथील व जिफानिन कल जवाबी व कुदूरिर रासियात अमलू आल दाऊद शुक्र व कलीलुन मिन इबादी यशकुर। हजरत दाऊद के मौजिज़ात की तफसील कुरान ने बयान की। व असलना लहू आइनल क़ित्र, सुलेमान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आइनल क़ित्र, तांबे को अल्लाह ने चश्मे बहा दिए। हजरत सुलेमान को परिंदों की बोलियां सिखा दी। हजरत सुलेमान के लिए बर और बहर की मखलूकात को ताबी कर दिया। और हैकल सुलेमानी कुब्बतुस सख्र, सुलेमान की तामीर आज भी दुनिया में मौजूद। ये सब अंबिया के मौजिज़ात। क्यों? इस बात की दलील है कि यह शख्स अल्लाह का नबी है, इसको कौम झुटला नहीं सकती। लेकिन फिर भी कौमों के 2 रवैये हुए। एक पैगंबर अल्लाह की तरफ से आने वाला मौजिज़ा देता था कौम को, कौम ने इनकार किया। कुछ फरमाइशी मौजिज़ात कौम की तरफ से, कौम सालेह ने, कौम समूद ने हजरत सालेह से पहाड़ों से जिंदा गाबन उठनी मांगी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, फरमाइशी मौजिज़े के बाद ईमान लाना जरूरी है। अगर फरमाइशी मौजिज़ा पैगंबर पूरा कर दे फरमाइश, फिर कोई ईमान न लाए तो पूरी कौम को अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है। कौम से कहा, कौम ने फरमाइशी मौजिज़े के बाद भी ईमान नहीं लाई। और इदिम बाअथ अशकाहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा। कुरान पढ़ो, एक एक दावे की दलील आपको मिलेगी। मैं इजमाल में जिक्र करता हूं। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत मैंने पढ़ी, कुल्लु नबिय्यिन मिनल अंबियाई, हर नबी मौजिज़ात दिया गया। और मौजिज़ा दलील नबूवत है, मकसद नबूवत नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मौजिज़ा दलील नबूवत कि ये मुद्दई शख्स जात जो है ये नबी है, अलबत्ता ये नबूवत का मकसद नहीं। क्या मतलब? अगर किसी नबी के हाथ कोई भी मौजिज़ा जाहिर न हो तो ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता है कि वो अल्लाह का नबी नहीं। वो चमत्कार, वो अनहोनी चीज होती हुई जो नजर आ रही है मुद्दई नबूवत शख्स की जात में, इसका होना ये नबूवत की दलील है, लेकिन नबूवत का मकसद नहीं। इसी ज़ाब्ते के मुताबिक इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ात दिए गए। बहुत मौजिज़ात, गिनाते जाएं जिंदगी भर के आपके मौजिज़ात बेशुमार। उन मौजिज़ात के बाद हर सहाबी मुस्तकिल मौजिज़ा, उसकी एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। लेकिन आका के तमाम मौजिज़ात में सबसे बड़ा मौजिज़ा और सारे अंबिया के मौजिज़ात एक तरफ, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा एक तरफ, कुल अंबिया के 1.25 लाख अंबिया के मौजिज़ात एक तरफ, आका के कुल मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा एक तरफ, कुल अंबिया के तमाम मौजिज़ात
आका के एक मौजिजे के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। यानी आका का एक मौजिजा अंबिया के तमाम मौजिजात पर भारी है। वो कौन मौजिजा है? वह मौजिजा है मौजिजा कुरान। दूसरे नंबर का मौजिजा मौजिजा शक्कुल कमर। तीसरे नंबर का मौजिजा आपकी मुट्ठी मुबारक में कंकर का तस्बीह पढ़ना। चौथे नंबर का मौजिजा आका के हुक्म पर दरख्त की टहनी अपनी जगह से दरख्त से उतरकर चलकर आका की खिदमत में हाजिर हो और आका वापस जाने का हुक्म दे दें, वो दरख्त की डाली वापस अपनी जगह पर चिपक जाए और पता भी न चले कि इस दरख्त से ये डाली जुदा हुई है। अभी तफसील बताता हूं। आका की उंगलियां मुबारक से एक सफर में 80 आदमी, एक सफर में 300 आदमी और एक सफर में 1400 का मजमा था। पानी नहीं था, लोग पानी के पास नहीं थे, यानी काफिले का पानी भी खत्म और कुआं भी नहीं। 3 मरतबा आपका मौजिजा जाहिर हुआ, जिसमें 80, जिसमें 300 और जिसमें 1400 लोग खूब सैराब हो गए और पेट भर करके पानी पिए, प्यासों ने प्यास बुझाई और सारे काफिले ने अपने अपने बर्तन भरे। पहले मौजिजे पर आते हैं इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों मोढ़ों के बीच में मेहर नबूवत थी, कबूतरी के अंडे की तरह उभरी हुई चीज यहां, और इस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। आका का रुआब 2 महीने की मसाफत की दूरी पर चलता था। आका का जसद अक़दस से निकलने वाला पसीना बगैर खुशबू लगाए हुए खुशबू के इस्तेमाल के वो मुअत्तर रहता था, बदबू तो दूर की बात वो मुअत्तर रहता था। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा मौजिजा जो कयामत तक मौजिजा बाकी रहेगा और जिसके बका तक दुनिया का बका है और जिसके खात्मे पर कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा, वह मौजिजा कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की खलवतें जब पूरी कर चुके, आप पर इकरा की 4 आयतें नाजिल हुई। उसके बाद मक्का मुकर्रमा में आका पर 87 सूरतें 13 साल के जमाने में नाजिल होती रही। आपको मालूम है ऐलान नबूवत के बाद के 13 साल, फिर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। यहां के 8 साल फतेह मक्का तक के और फतेह मक्का के बाद के 2 साल यहां कुरान करीम की 27 सूरतें नाजिल हुई। और ये पूरा कुरान इक़रा से लेकर के वन्नास तक आपके कल्बे अतहर पर खुदा ने नाजिल फरमाया और कयामत तक इसके मौजिजा की तासीर बाकी रहेगी और इसकी मौजिजा की तासीर को कोई खत्म नहीं कर सकता। यह मौजिजा है कुरान। इसीलिए आका ने चैलेंज किया था मक्का के मुशरिकों को। वो यूं कहते थे कि मोहम्मद शायर है अलायाजुबिल्लाह, और शायर शायरी बनाकर के पेश करता है। कुरान भी अपनी तरफ से बनाकर पेश कर दिया। कुरान ने चैलेंज किया फातू बिअशरी सुवरिन मिस्लिहा, अगर मोहम्मद अपनी तरफ से कलाम घड़ करके पेश कर सकता है, ए अरब के पढ़े लिखो, ए शायरा की जमात, तुम तो शेर शायरी के इमाम हो, तुम्हारी बेटियों को 99 अशआर के कसीदे मुंह पर याद है। अरे ओ अरब के बद्दुओ, तुम अपने बाप के कातिल का पता शेर से लगा लिया करते हो, तो इस जैसी 10 सूरतें तो बनाकर पेश करो। यह कुरान का पहला चैलेंज था। यही वो अरब के बद्दू थे जो अपने बाप के कातिल का पता बेटियां शेर से लगा लेती थी। कितने शायर और शायरी में माहिर थे। इसी रंग में रंगी हुई ज़हनियत के लोग कुरान को शायर की नजर से देख रहे हैं और कहते हैं इन्नका लशायर, आप तो शायर हैं। एक जमाना था अरब में पंडितों का, काहीनों का, जोशियों का, हाथ के आकार देखकर उसका प्रकार बताते थे। आज भी है, आकार देखकर प्रकार बताते हैं, समझे।
तुम्हारी किस्मत ये है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन और काहिनन फकद कफर। जो किसी काहिन या जोशी के पास गया कि मेरा हाथ देख रहे, मेरा नसीब कैसा है, वो आदमी काफिर हो गया। खाली उसके पास गया, मन अता अर्राफन और काहिनन, रिवायत मुअव्वल है और इसकी तफसीलात अपनी जगह पर, लेकिन रिवायत का जाहिर ये कह रहा है और उसको अपने जाहिर पर बाकी रखना चाहिए ताकि जोशियों, पंडितों, साधुओं और इस किस्म के मजमे से उम्मत के ईमान की हिफाजत हो जाए। और हदीस की तावील अगर करने जाएंगे तो लोग मस्ती मस्ती में भी कहते हैं मेरा नसीब जरा देख ले। वो नसीब का मारा हुआ दर दर की ठोकरें खाता है और तुम्हारे ठिकरों का मोहताज जो सड़कों पर पड़ा है, अरे बेवकूफ तेरी अकल की इंतहा हो गई, तू उससे नसीब बतलाता है। अगर इसको नसीब तेरा मालूम होता तो वो डर डर की ठोकरें क्यों खाता, ये सड़कों पर क्यों गुड़िया बिछा करके बैठता। तेरे दिल में खुदा का डर नहीं है और तेरे दिल में खुदा का घर नहीं है। तेरे दिल में खुदा का डर होता और तेरे दिल में खुदा का घर बसा हुआ होता तो इन काहिनों के डरों की तो दौड़ न लगाता है। ये सिलसिला है बड़ी बड़ी दरगाहों के पास, बड़ी बड़ी टूरिस्ट की जगहों के पास इन लूटने वाले लोग के हाथ रखकर हाथ रखे हुए होते हैं। वो हाथ बताने वालों के बाबत कुरान कहता है, आका फरमाता मन अता अर्राफन और काहिनन फकद कफर, ये आदमी काफिर हो गए। क्यों? अल्लाह ही गैब जानते हैं। तो कहानत थी, आका को कहा कि ये तो काहिन है, आका के बाबत कहा ये तो जादूगर है। इनकी बात में क्या मिकनातीसी असर है, क्या उमर जैसा लोहा भी मोम हो जाता है। इसकी बात में क्या मिकनातीसी असर है कि मुसाब जैसा भी उहद में जाकर के जान दे देता है। इसकी बात में क्या मिकनातीसी असर है कि हमजा जैसा भी पिघल जाता है। इसकी बात में क्या मिकनातीसी असर है कि बिलाल मार खाया जा रहा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन अहदुन अहदुन का नारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी बात में क्या मिकनातीसी तासीर है और क्या जादू बयानी है कि सुमैया शगीर हो रही है लेकिन फुस्तो व रब्बिल काबा, जन्नीला की आंख फोड़ी जा रही है लेकिन कह रही है फुस्तो व रब्बिल काबा। ले मोहम्मद तो जादूगर है। किसी ने शायर कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने जादूगर कहा और एक परले दर्जे के निकम्मे लोगों ने कहा ये तो पागल है, मजनून है, मजनून। उस ज़हनियत के लोग मरे नहीं हैं, याद रखो। आका को मजनून कहा था मक्का वालों ने, वो मक्का की नस्ल खत्म नहीं हुई। वसीम रिजवी लईन नापाक की सूरत में उसकी नस्ल आज भी मौजूद है। जरा माइंड दौड़ाओ, नहीं अपना दिमाग दौड़ाओ। ये शियत में इसका कोई काम नहीं। एक जमाने में सिया मुकब्बत का वो चेयरमैन बन गया। ओहदे भी पचाना बहुत बड़ी बात है, वरना ओहदे पचते नहीं है। इसलिए कि ओहदे जब आ जाते हैं तो तकब्बुर आता है, बहुत बड़ी बात है। नापाक लाइन उसके बाबत गुस्ताख के बाबत जो कुछ कहा जाए, वो आदमी जन्नती है कि एक झटके में उसका काम तमाम कर दे। लाइन काफिर आका की शान में बकवास करता है अभी का कि मोहम्मद तो अलायाजुबिल्ला मजनून था, अलायाजुबिल्ला सुम्मा अलायाजुबिल्ला, और उसने किताब निकाली मोहम्मद के नाम से। जहां कहीं मुसलमानों हाथ आ जावे उसको जलाकर खाकस्तर कर दो, उस पर पलीदी डाल दो, इसको पढ़ो भी मत, उसको देखो भी मत। हमारे अकीदे को, हमारे दिलो दिमाग को इसने थोड़ी देर के लिए उसकी रफ्तार को बंद कर दिया है। यह ज़हनियत मरी नहीं है, आज मौजूद है। देखो आका मक्के मुकर्रमा में जन्म लेते हैं, जो कोहिस्तान है, पहाड़ पहाड़, जहां पानी का नामो निशान नहीं है। अब पैदाइश की हिकमत पर एक किताब लिखी गई कि मक्का में क्यों पैदा किए गए, बनो हाशिम में क्यों पैदा हुए। अब उसका तो यह मौका भी नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तबका वो भी था
जो यूं कह रहा था आका को मक्के में उस वक्त कि ये तो अलियाज़ुबिल्लाह पागल है, ये चारों बातें कुरान में लिखी है, इन्नका लशाइर, इन्नका लमजनून, इन्नका लकाहिन, इन्नका लसाहिर। पैगंबर ने फरमाया चलो ए शायर अदब के इमाम, ए अपने बाप के कातिल का पता लगा लेने वाली बेटियों, जरा तुम भी शेर शायरी बना करके इस जैसा कुरान पेश करो, 10 सूरतें बना लो, 10 सूरतें। नहीं बना सके, टाइम दिया, फातू भी सूरतिन मिन मिसली, अरे एक तो ले आओ, एक सूरे बकरा जैसी नहीं, 28 सिपारे की, सूरे इन्ना आतैना कल कौसर जैसी एक बनाओ, छोटी भी छोटी सूरत एक तो बनाओ। चलो नहीं तो 10 आयतें बना कर लाओ, ये भी नहीं तो एक आयत तो लाओ, और वो सूरे बकरा की आयतें देर नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वाली आयत नहीं, कुरान करीम की सबसे छोटे में छोटी आयत मुदहाम्मतान, एक कलीमा या 2 कलीमे, कल्ला वल कमर, ये 2 कलीमे हैं। खैर उस पर एक लंबी बहस है। कुरान करीम की सबसे छोटी आयत कौन सी? एक लफ्ज में, एक कलीमे में सबसे छोटी आयत मुदहाम्मतान। पहले एक लफ्ज होता है, लफ्ज यानी इंसान जिसको फेंकता है, इसलिए बहुत फेंकू को लफ्फास कहते हैं अरबी में, उर्दू में फेंकू कहते हैं, अरबी में लफ्फास कहते हैं। और अरबी में लफ्ज को लफ्ज इसलिए कहते हैं कि ये फेंकता है आदमी, और कुरान के अल्फाज को अल्फाज नहीं कहते हैं, रस्मे कुरान कहते हैं, नज़्मे कुरान कहते हैं। और नज़म का माना मोती को लड़ी में पिरो देना, और लफ्ज का माना फेंकना। कुरान फेंकने वाली किताब नहीं है, कुरान मोती को लड़ी में पिरोने वाली और दिल की गहराइयों में उतारने वाली किताब है। अल्फाज पर भी बहुत हिकमतें हैं और उस पर भी किताबें लिखी जा चुकी हैं। व्हाट्सएप की दुनिया में रहने वाले को यह ऐलान है, ये पढ़ने की किताब है, किताब हिदायत है। अल्फाज ले आओ तो लफ्ज के एतबार से मुदहाम्मतान नज़्म कुरान, और 2 कलीमों का एक बना दिया, कल्ला वल कमर वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर। सूरह मुद्दस्सिर के अंदर कल्ला वल कमर, इससे छोटी आयत कोई नहीं, या एक कलीमा मिला करके मुदहाम्मतान जैसी छोटी आयत कुरान में कोई नहीं। कहां इतनी भी तो बना करके ले आओ। मक्का वाले खुश हो गए, चलो बनाओ। जितने शायर अदब के इमाम थे, PhD किए हुए बड़े बड़े जर्नल, वो जमा हो गए हरम में, और एक सूरत बनाई, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह। इसके वजन पर ये सूरत उन्होंने नहीं बनाई, ये तो अल्लाह की है, अल क़ारिअह तो अल्लाह की है, इसके वजन पर इन्होंने बनाई, अल फील मल फील वमा अदराका मल फील खुर्तुमुहु तवील जिस्मुहु ज़ख़ीम। समझे? नहीं समझे। अरबों में हाथी नहीं होता था, हाथी वहां पैदा नहीं होता था, वहां तो ऊंटे थी। इसीलिए तो कुरान कहता है फला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। मक्का वाले जरा निगाह उठा करके देखो कि ऊपर आसमान है और नीचे जमीन है, दाएं बाएं पहाड़ है, और तुम्हारी जिंदगी का रासुल माल, भारी में भारी बैंकिंग और मनी, ऊंट है ऊंट, बाकी कुछ भी। अरबों ने ऊंट से मालियत में कीमती चीज कोई नहीं देखी थी। खुदा की कसम, अगर अरबों के यहां मालियत में ऊंट के अलावा कोई और कीमती चीज होती, कुरान उसको जिक्र कर, पढ़ने की किताब है। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। फिर कुरान कहता है फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ऐ नबी आपका काम नसीहत करना है, नसीहत करो। हाथी होता नहीं था तो शायर अदब के इमाम जमा हुए और बनाया अल क़ारिअह के वजन पर, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, वो खड़खड़ाने वाली चीज, वो हिला करके रख देने वाली चीज, वो मुंहों पर कलेजे ले आने वाली चीज। अल क़ारिअह के 70 तर्जुमे, कलेजे मुंह पर ले आने वाली चीज,
وہ हिला करके रख देने वाली चीज, वो खड़खड़ाने वाली चीज, मल कारिया, पैगंबर मालूम है वो क्या है? वमा अदरा का मल कारिया, इसके वजन पर इन्होंने कहा अलफील मलफील, अरे हाथी देखा है हाथी? वमा अदरा का मलफील, वमा अदरा का मलकारिया, चोरी की, चोरी के बगैर तो उनका कोई काम बनता है कि चोर थे परले दर्जे के, इसलिए वमा अदरा का कुरान का उठा लिया और कारिया की जगह फील जोड़ दिया। अजीब किस्म की। तो मजलिस में उनके जितने साथी थे उन्होंने ठेकड़ी उड़ाई, वो मजलिस वहां फोक हो गई। या बहुत सारी मजालिस ऐसी होती है तो मजलिस में फोक हो जाती है, वो मजलिस वहीं फोक हो गई कि जब अपनों में ये नहीं चला कुरान, तो कयामत तक की नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए ये कुरान कैसे चल सकता है? एक आयत कुरान की बनाकर नहीं पेश कर सके। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब क्या का हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में रहते हुए 87 सूरतें उतरी, 27 सूरतें वो 114 सूरतें उतरी आप पर। ये कुरान मुअजिजा है और कयामत तक उसकी मुअजिजाती तासीर बाकी है। इसीलिए आदम का बच्चा नाबालिग उम्र में मदरसे में दाखिल होता है और 7 बरस 8 बरस में वो हिफ्ज कुरान शुरू करता है और अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने में 1 साल में, मेरा अपना तजुर्बा 4 महीने 7 दिन में मेरे पास बच्चा हाफिज हुआ है। 4 महीना 7 दिन में, 4 महीना 7 दिन में उम्र 11 साल की और 4 महीना 7 दिन में हाफिज। मेरे अपने तजुर्बे में 2 बच्चे बाहर इंग्लिश मीडियम पास होकर के मदरसे में आकर के साल में 6 महीने में हाफिज हुए। मेरे अपने तर्जे में 1 दर्जन तलाबा 1 साल में कुरान के हाफिज हुए। यह मौजिजा है। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि अल्लाह का कलाम इतना जल्दी अब्ज़ कर सके। ये मौजिजा है और कयामत तक इसकी मौजिजाती तासीर बाकी रहेगी। हमारे अकाबिर असलाफ अलमाए देवबंद, हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इनकी सीरतें आप पढ़ो। रमजान का महीना आ गया, जहाज का सफर है, कोई हाफिज साहब नहीं है, दिन में कुरान पढ़ते थे और रात को वही 1.25 पारा तरावी में जहाज में सुनाते थे और 1 महीने में कुरान के हाफिज हो गए। 1 महीने में कोई हाफिज साहब नहीं है। मालूम यह हुआ, यह कोई उजर नहीं है कि बस्ती में कोई हाफिज साहब नहीं है तो हमने तो कुरान से नहीं पढ़ी, अलम तरा से पढ़ ली। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद जिनके नाम पर हम नमक खाते हैं और जिनके नाम पर हम निवाले जो है वसूल करते हैं, इनकी सीरत है और इनकी पाकीज़ा जिंदगी है। ये सिर्फ नाम मशहूर नहीं हो गया, उनके पीछे बहुत बड़ी हकीकत है। जिन्होंने जहाजों में महीनों के सफर के दरमियान दिन में कुरान का पारा पढ़कर के रात को बगैर किसी हाफिज के मुसल्ले की पुस्तक पर सुना दिए, तब वो कासिम नानोतवी बना, तब वो रशीद अहमद गंगोही बना, तब हुज्जतुल इस्लाम जो है अशरफ अली थानवी बना, मुजद्दिदुल मिल्लत। ये इनकी जिंदगी के कारनामे हैं। कुरान रहती दुनिया तक मौजूदा है, इसके अल्फाज, इसके मानी भी मौजूदा, इससे इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम भी मौजूदा। उसका एक हर्फ कयामत तक न बदला जाएगा और नमाजी में बदला गया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान उतारा और हम ही कुरान की हिफाजत करके रहेंगे। वसीम रज़वी जैसे कायनात के गद्दार करोड़ों खड़े हो जाए, अल्लाह का कलाम कोई नहीं बदल सकता। जब तक मदारिस में उसकी हिफाजती तदाबीर के लिए उम्मत का तबका अपनी औलादों को मदरसों को वक़्फ़ करना शुरू कर दे। जरूरत है इस बात की। बहुत कड़वे कसेली की जिंदगी पर यह राजी रह जाएगा, कड़वे कसेले हालत में यह हिफ्ज कर लेगा। वो सेपहर में उठ करके क्या मुबारक आंख है जो कुरान पर पढ़ती है, क्या मुबारक आंख है जो सोते हुए कुरान पर पढ़ती है। और सुबह में उस्ताद की लकड़ी की फिक्र में जब रात को कभी अचानक आंख खुल गई तो भी वो मस्जिद के अंदर आकर के कुरान की तिलावत करता है। एक मुकद्दस तबका है, एक काम है, यह कोई रस्मियत नहीं है, एक हकीकत है और इस पर एक बहुत बड़ा कमाल छुपा हुआ है। जब तक ये दरसगाह हिंदुस्तान में मौजूद है तब तक हिंदुस्तान का मुस्तकबल कभी भी तारीफ नहीं हो सकता, रोशन ही रहेगा। कितना ही बड़ा जालिम हुक्मरान खड़ा हो जाए, ऐसे नरसिम्हानंद कितने करोड़ों खरबों अरबों और हिंदुस्तान के हर दरख्त की रूहों की तादाद के मुताबिक पैदा हो जाए, उसका फिर लाइन को यह चैलेंज है कि इस्लाम और कुरान
कभी भी रहते दुनिया तक मिट नहीं सकते, जितना इसको दबाओगे ये उभरेगा। अरे हमारी तारीख है कि तुमने 52,000 अंग्रेज इन उलमा को फांसी के फंदे पर लाल किले से चांदनी चौक तक के अंदर तुमने चढ़ाए, हमारे आबा अजदाद को चढ़ा दिए। हमारे उलमा 52,000 थे, 52,000, जो दिल्ली के लाल किले से चांदनी चौक तक फांसी के फंदे पर लटके। लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेज साम्राज्य के जाने के बाद आज तक इस्लाम खत्म नहीं हुआ और रहती दुनिया तक इस्लाम खत्म नहीं होगा, और कुरान खत्म नहीं हुआ और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कुरान खत्म नहीं होगा। रसीम रिजवी, तो अपनी किस्मत आजमा ले। तूने खुद अपनी बर्बादी को अपने हाथों में बयान किया कि मेरी लाश को फुला फुला काफिर लाइन, वो जो है इसको जहन्नम कदे तक पहुंचावे। ये तेरी जिंदगी में खुदा की मार तुझे काफी है। हम अपनी जुबानों को तेरा नाम लेकर बरबूदार करना नहीं चाहते, लेकिन एक चैलेंज है। क्या सबक है? परेशानियों का हल क्या है? अभी एक रिसर्च आया, हम भी इस बस्ती में परेशान हैं। एक तरफ देखो तो बाहरी सामान पूरा फेल, कश्तियां बनाना ये वो उसके तमाम असबाब लगाए। एक मामूली सा कीला जो जर्री की भी हैसियत नहीं रखता, जिसका रंग सफेद, कभी गौर किया? बागात के मालिक ने कभी गौर किया? कभी इसको हाथ में पकड़ा, उसकी हैसियत देखी? हमने पकड़ा, इसको देखा कि है क्या ये। एक सफेद रऊ है मखबल की तरह, सफेद, हरी चीज को खाता है। खुदा ने उसकी गिजा बनाई, ये वो खाता है और ऊपर का लीला जो है काला बन जाता है। खुदा का कहर है। लेकिन मुसलमान अपने यहां शादियों के अंदर फटाकड़े फोड़ता है, मुसलमान अपने यहां सगाइयों में दीजिए, हद हो गई। कश्मीर की 16 साल की बेटी परसों उसका बाप शहीद कर दिया गया, बेकसूर निर्दोष फौज ने जान ले ली। अब वो बेटी पूछती है, कश्मीर की मासूम निहत्ती जान जिसकी जिंदगी का सरमाया वे उसकी मां और उसकी छोटी मासूम बहन है, उस फौजी अफसर जालिम से पूछती है, कौन से गुनाह की पादाश में तुमने मेरे बाप को कत्ल किया है, जरा तुम मुझे बताओ तो सही। तो वो अफसर उस जवान, उस बेटी, 16 साल की बेटी की, खातून की इज्जत की ठेकड़ी उड़ा रहा है, और वहां बाप की लाश पर वो खड़ी। क्या जवाब देंगे डीजे बचाने वाले मुसलमान? अपनी सगाइयों में, अपनी शादियों में हम आजाद, हमको कोई कहने वाला नहीं। ये एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है इस धरती पर, क्या कोरोना वायरस भूल गए? हमको यूं लगता है कि शायद अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत करीब में एक बहुत बड़ा अज़ाब आ रहा है। बेबाकी, आजादी, इस कदर बेखौफ मुस्लिम मुआशरा, क्या मजलूम कश्मीर के इन मजलूमों को जवाब तुम्हें नहीं देना पड़ेगा? उसकी ललकार सुनो, उसकी ललकार। ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम कहां हो? तुम कहां सो गए हो? मेरा निर्दोष बाप इस तरह मारा गया, अपने घर में से उठा करके उसके जिस्म के पुर्जे कर दिए गए। फिर भी मुसलमान डीजे बजाएगा, फिर वो मुसलमान अपनों के खिलाफ अखबार की सुर्खियां बनाएगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। वसीम रिजवी को ऐसे ही ताकत पैदा नहीं हो गई। बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा कसूर अगर किसी समाज का है तो हम गौर करें कि हमारे अंदर के आस्तीन के सांप कौन है। आका हिजरत फरमाकर मदीना तो शरीफ ले गए, मदीना में 3 साल पहले इस्लाम आ गया। मदीना ईमान का घर बन चुका, कुरान कहता है ईमान का घर है। मुनाफिक को मदीना कभी रहने भी नहीं देगा कयामत तक। लेकिन वहां मारे आस्तीन 2 थे, सूरे मुनाफिकुन पढ़ो, और वहां मारे आस्तीन यहूद थे। कितना भारी नुकसान। अरे मक्का के 13 साल पैगंबर कभी मारिके के लिए बदर में नहीं उतरा था, लेकिन हिजरत के बाद दूसरे साल में बदर में उतरना पड़ा। ये कौन थे? ये मारे आस्तीन थे, जिनके नतीजे में उहुद में 70 सहाबा की शहादतें हुई। मेरे भाइयों, इत्तिहादी प्लेटफार्म को मजबूत कर लो कुरान के उन्वान से। कुरान ही इस कायनात से सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है, और शरीयत और सुन्नत का इत्तिबा
कारोबार में भी अल्लाह है, कारोबार में भी शरीयत है, फरमा बनाने में भी शरीयत है, बाग रखने में भी शरीयत है। एक मामूली सी मखमल का कीड़ा वो उसको खा करके काला बना देता है। और कुरान ने जहां हलाक शुदा कौमों का तस्कीरा किया है, जहां हलाक शुदा कौमों का तस्कीरा किया है, अब कुरान पढ़ोगे, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल। आखिरी बात, फजअलहुम कअस्फिन माकुल। जमाने की बहुत बड़ी ताकत यमन का बादशाह अब रहा, इतना घमंड पर आया था मक्के पर हमलावर होने के लिए, और कुरान ने उसकी हलाकत को, चिवड़ा खाने के बाद जो भूसा बाकी रह जाता है ना खारा खारा, कुरान में है फजअलहुम कअस्फिन माकुल, खाए हुए भूसे की तरह उस फिरौनी ताकत को खुदाबंद कुद्दूस ने सुकड़ करके रख दिया। जिस कौम पर कहर बरसता है कहर, वो काली पड़ जाती है, खाए हुए भूस की तरह हो गया, खाए हुए भूसे की तरह जिसको कचरे में फेंक दिया जाता है। वो तो कुरान ने बयान किया, वरना सफाई हस्ती पर अब रहा की कोई हैसियत खुदा बाकी न रखता। तो कुरान का बयान करता है, इसलिए हम जिक्र करते हैं। पहली चीज कुरान मौजीजा है, कुरान के साये तले आना पड़ेगा, न फर्द कामयाब होगा, न घर कामयाब होगा, न समाज कामयाब होगा, न मुआशरा कामयाब होगा, और दुनिया की कोई ताकत भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि कुरान के नेजा हेटर ना आ जाए। ऐसे वसीम रिजवी और ऐसे नरसिम्हन, ये कितने ही करोड़ों पैदा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने मोहम्मद नाम की किताब निकाली अलायाजुबिल्लाह, और आका के बाबत जो उसने बदजुबानी की है, वो अल्लाह के घर में बोलना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं, हमारे ईमान का भी मसला है। लेकिन ऐसे काफिर रिजवी और वो रजाखानियों को बदनाम करने के गर्ज से रिजवी लगा रहा है, उसकी भी कोई हकीकत नहीं, ये काफिर मलऊन कुत्ता है, उसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन चैलेंज तो कर गया। क्या चैलेंज? ए मुसलमानों, अपनी ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। कुरान से महरूमी के नतीजे में हालात है, जब आदमी कुरान से और कुरान के हुकूक से दूर रहता है तो 3 अजाब आते हैं, 3 अजाब। जब कुरान से आदमी हटता है, उसके लिए गुनाह की लाइन खुदा खोल देता है। फिर उसकी समझ में यूं है कि मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं, गुनाह की लाइन खुल जाती है, मासियत का दरवाजा खुल जाता है। जब किसी कौम की हलाकत आती है तो खुदाबंद कुद्दूस उससे कुरान की तिलावत के जज्बात को खत्म कर देता है, तिलावत नहीं हो पाती। और जिस कौम पर हलाकत आती है तो तीसरा सबब, खुदाबंद कुद्दूस कुरान अहकामात पर अमल से उसको रोक देता है। जब भी हमारी तरफ ये खुदा की 3 वईद मुतवज्जे हो, गुनाहों के शौक पैदा हो रहे हो, आज कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। मैं मेरी पार्टी, मैं आजाद, मेरी पार्टी आजाद, मैं ही अच्छा काम करता हूं, सब खराब काम करते। और मैं अना का दावा अकबर इलाहाबादी में, अकबर ने कहा था, उसने दीन इलाही आबाद किया था, और उसने नई शरीयत निकाली थी और नई किताब निकाली थी। आज उसकी कब्र पर फरकने के लिए कोई तैयार नहीं। यह हालात जुल्म कितना भी तेज धारदार हो, मछली के उन 500 दांतों से तो तेज धारदार नहीं। अल्लाह ने दरिया में एक मछली पैदा की, एक मछली, उसके मुंह में 500 दांत है, और रोजाना उसमें से 20 दांत गिरते हैं, 500 दांत, और इतने धारदार और जहरीले और खतरनाक नोकीले हैं, अगर वो पकड़ ले तो पूरी उंगली चाप डाले एक सेकंड में। ऐसी भी मखलूक खुदा ने दरिया में पैदा की है। अगर तू जुल्म की तेज धारा को बुलंद करता है तो समंदर की एक ज़ईफ मखलूक जिसके मुंह में 500 इंतहाई खतरनाक घातक ताकतें हैं, और घातक ताकत से वो खूनी मुकाबला करती है, तो तू उससे तो खूनरेज नहीं है। सोचना चाहिए, इत्तेहादी प्लेटफार्म बहुत जरूरी है। कोई किसी के खिलाफ उछाले, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, याद रखना चाहिए कि इस्लाम को उछाला है, मुसलमानों को उछाला है,
याद रखना चाहिए खुदावंद कुद्दूस वो दिन दूर नहीं कि तेरे घर में तेरे अहले खाना के दरमियान खुदा तुझे जलील और रुस्वा करके छोड़ देगा। ये आजाद है खुदाबंदगी। ये पहला मौजूदा है कुरान, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। अपना वो कुरान को तिलावत करो कुरान की। ये नापाक कुत्ता भी हमें सबक दे रहा है। तुम अपनी किताब अजीज से बेखबर हो गए हो मुसलमानों, लिहाजा किताब की तिलावत करो। पहला काम तिलावत है, तिलावत शुरू कर दें। रोजाना एक पारा पढ़े, महीने में 3 खत्म हो जाए, 1 खत्म हो जाएगा। 2 पढ़े 15 दिन में 1 खत्म हो जाएगा। एक काम ये। दूसरा मौजूदा शक्ल कमर। मक्का वालों ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं, आपका दावा है, तो जरा चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। नहीं ले, ये कोई बात हुई यार? हम आप जैसे हो इस मनसब पर तो एक तमाचा मार देवे कि नहीं? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तू बहुत बड़ी कुदरत का मालिक, ये तेरी मखलूक है, तू इसका खालिक है, तूने उसको रोशनी पैदा की और ये बेचारे मानते हैं कि रोशनी का देवता है तो नमस्कार अलैहिस्सलाम। ये तो अल्लाह की मखलूक है, वो क्या खुदा हुआ, वो क्या देवता हुआ? मगरिब के बाद किस देवता को तलाश करोगे, किसको नमस्कार करोगे? है ही नहीं तो वो तो नमस्कार के हवाले हो गया। अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत का मालिक, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। आका से अल्लाह ताला ने फरमाया इसको उंगली दिखा दो। उंगली दिखाना तेरा काम है और चांद के 2 टुकड़े करना मेरा काम है। कुरान पढ़ो, इक़्तरबत अस्साअतु वनशक्कल कमर वहीं यरौ आया यअरिदु वयक़ूल सहरम मुस्तमिर। आहा, अजीब बयान है कुरान। पढ़ो तो सही, इतनी जज्बियत है, इतनी हलावत है, इतना वजद है इसमें। कुरान का अंदाज बयान देखो। इक़्तरबत अस्साअ, क़यामत करीब आ गई। 1443वां साल है हिजरत को और उस वक्त तो कुरान कहता है क़यामत करीब आ गई। क्यों? कुरान पर चैलेंज किया मक्का वालों ने और पैगंबर की हिस्ट्री पर बागा वालों ने चैलेंज किया। ए वसीम रिजवी, अगर मेरे नबी की सीरत पर तू उंगली करेगा, तू और तेरा हिंदुस्तान अब जो है या तेरे हामी इस तरह कायनात से एकदम तितर बितर हो जाएंगे जैसा कि वो हो गए। ये हुआ है ज़हनियत, मानसिकता। मैंने कहा नहीं, मानसिकता खत्म नहीं हुई, मक्का वालों की मानसिकता खत्म नहीं हुई, वरना आप कहेंगे कि ये वाकई अभी बयान करने की क्या जरूरत। आका ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए। कुरान कहता है इक़्तरबत अस्साअ वनशक्कल कमर, कयामत करीब आ गई। पहले चांद के 2 टुकड़े का मसला क्या है, कयामत का मसला क्यों पहले बयान किया? ये सवाल भी पैगंबर के से कयामत की दावत थी, इसीलिए कुरान ने कहा इक़्तरबत अस्साअ वनशक्कल कमर। कुरान आगे कहता है यरौ आया यअरिदु, अरे चांद के 2 टुकड़े तो क्या, अल्लाह फरमाते हैं अगर इससे भी बड़ी निशानी कोई आ जावे तो भी ये लोग एराज ही करेंगे, मुंह ही फेरेंगे, एराज ही करेंगे और यूं कहेंगे सहरुन मुस्तमिर। ये तो मजबूत जादूगर मालूम होता है। कुरान का बयान करदा कानून। इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए। मक्के में कोहराम मच गया। ओहो, चांद के 2 टुकड़े हो गए, चांद के 2 टुकड़े हो गए। शाम को चरवाहे आए रात में, कहा अजूबा हो गया आज तो। क्या ऊपर हमने देखा चांद के 2 टुकड़े हो गए। मक्का वालों ने क्या कहा, ओहो मोहम्मद का जादू, अब तक तो जमीन पर चलता था, अब तो आसमान पर भी चलने लगा। यो अरिदु व यक़ूलु सहरुन मुस्तमिर। जिनको मानना नहीं है कायनात की सारी ताकतें मुस्तमे कर दो, वो टेढ़ा ही चलेगा। नहीं माना, इन अपराधियों के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने, अब शाम को वो लोग आए ना, तो अबू जहल ने कहा चुप हो जाओ, अगर मोहम्मद सुनेगा तो उसकी 4 आंखें हो जाएगी, बातें बंद कर दो, इसको दबा दो। इसीलिए आज कहा जाता है हक को दबा दो वरना बगावत फैल जाएगी, हक को दबाओ वरना बगावत फैल जाएगी, यूं कहा उन्होंने। बात खत्म। लेकिन मक्के में थोड़ा हुआ था, मक्के ही के साथ खास था। हिंदुस्तान के राजा सामरी ने मालाबार के एरिया में, हिंदुस्तान के अंदर मौजूदाए शक्कुल कमर हुआ, उसका असर बहुत तफसीली वाकया। मुख्तसर ये
3री सदी हिजरी के शुरू में साहबा यहां तशरीफ ले आए, मालाबार में गए, राजा गदन कलूर से इस्लाम की दावत दी। जहां जहां दरिये हैं वहां इस्लाम पहले आया है। धर्मांतरण जबरदस्ती करना रे फोक दावेगे, छोड़ो भाई। आजकल कैसा कोई बेवकूफ अच्छा थोड़ा कोई पैदा हो, एक वाघरी भी, एक किस्म का छमार भी, उस पर भी तो जबरदस्ती करके देखो। अरे हमने कहा इस्लाम है कि हम किसी पर धर्मांतरण का जबरदस्ती करेंगे? अखबार में दे दी, मांगरोल में भी धर्मांतरण થઈ રહ્યું। क्या धर्मांतरण? किसका धर्मांतरण हो? समझ जाओ, ख्वाब गफलत से सोई हुई इंसानियत बेदार हो जाओ। वो दिन दूर नहीं, घरों में पकड़े जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, मारे जाओगे और तुम्हारा निशान तक मिट जाएगा। तुम पर कोई दावा दायर करने वाला बाकी नहीं रहेगा। तोड़ नफरत, तनाकुज, इख्तलाफ और अपने पाकीज़ा जिगर गुशों को दुश्मनों के हवाले करना, यहूदी लोबी की पुरानी चालें न अपनाया करो। ताकत के बलबोते पर घमंड मत किया करो। ये चंद दिन का आयुष है, दुनिया फानी है, कब्र के साए तले हमेशा सो जाना है। जल्द खत्म होने वाली चीज है। राजा के पास, सामरी के पास सहाबा पहुंचे, आका की तालीमात का तस्कीरा किया। पढ़ो, पता चलेगा। इसमें मौजूदाए शकुल कमर का तस्कीरा 200 साल के बाद सहाबा ने किया, तो उसकी 4 आंखें हो गई। तुम्हारा नबी इतना भारी भरकम कि आसमानों में तसर्रुफ पैदा कर देता है। तो राजा ने कहा कि वीकली पेपर निकालो। आज लोग कहते हैं बहुत तरक्की कर ली प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। उस वक्त भी छापा छपता था, लेकिन उस वक्त हकीकत छपती थी, आज बोगस छपता है। कुछ भी नहीं, 99 झूठ में एक सच तलाश करना पड़ता है। 99 झूठ, एक सच भी तलाश करना पड़ता है। इसका नाम छापा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दज्जाली ताकत। अब हुआ ये, कहा कि रोज नाम से तलाश हो, खजाने खोलवाए, खजाने। एक पेपर में निकला, ओहो आज अजीब चमत्कार हो गया, आसमान पर चांद के 2 टुकड़े हो गए। पेपर पढ़ते ही राजा ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जबरदस्ती धर्मांतरण राजा सामरी का गदन कलूद में किसने किया था? हकाइक देख करके इस्लाम कबूल किया जाता है। ये चमकता दमकता सूरज है, इसको कोई चांद नहीं कह सकता, इसको सूरज ही कहता है। उसकी रोशनी से आदमी वाकिफ है। मेरे बुजुर्ग, ये दूसरा मौजीजा है। तीसरा मौजीजा आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मैं 10 मौजीजात सिर्फ जिक्र करूंगा, इसलिए कि मैं सीरत बयान करता हूं और 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और दलाइल नबूवत पर बात हो चुकी है और तीसरी दलील आपको पेश करनी है। 2 दलील आपको मैं पेश कर चुका, एक है कुरान, एक है मौजीज़ाए शक्कुल कमर। आइंदा अल्लाह के पैगंबर के अंगुश्ताए मुबारक से पानी के फव्वारे फूटना, आपके इशारे पर दरख्त से डाली का चल करके उतर करके आ जाना और वापस उसमें फिट हो जाना और ऑपरेशन में जर्रा बराबर तमीज का न होना और सांधा दिखाई न देना और धागे की सिलाई न दिखाई देना, ये सब इससे निकलता है। आइंदा साबित करके बताएंगे इंशाअल्लाह। इसको इल्म आखिरत कहते हैं, इसको कुरान का इल्म, उसकी हम दावत देते हैं। अपनी औलादों को दीनी मदरसों के हवाले करो, इनको कुरान पढ़ाओ और कुरान का रिसर्च करवाओ। इंशाअल्लाहुल अजीज ये जमाने के चमकते दमकते सूरज बनेंगे। जेलों की सलाखों के पीछे रहकर भी ये कुरान की नशर व इशाअत करेंगे। जहाजों में सफर करते हुए भी कुरान की नशर व इशाअत करेंगे। अरे फांसी के फंदे पर लटकते हुए भी जब जाकुनी का आलम होगा, फुस्तवा रब्बिल काबा का नारा उस वक्त भी बुलंद होगा। कसम खुदाई पाक की ये हिम्मत नहीं हारेगा। जेलों की सलाखें वो अल्लाह मंजूर कर दे तो वो आबादी में भी रखता है, वो अल्लाह मंजूर कर दे तो जेलों की सलाखों में भी तो जीवन ही तो गुजरेगा। मौत तो वहां भी आएगी, मौत तो घरों में भी आएगी। खुशकिस्मत है वो लोग जेलों की सलाखों में मर गए, वरना टाटिए रगड़ते रगड़ते घरों में तो नहीं मरे। कुरान किताब अजीज है, ये पुरअमन माहौल हिंदुस्तान में बनाने की जरूरत है। अगियार तक इस्लाम के हकाइक पहुंचाने की जरूरत है ताकि वसीम रिजवी जैसा कोई दूसरा कुत्ता लईन खड़ा न हो। ये पैगाम है अमन, आस्ती और मोहब्बत का पैगाम इन तक पहुंचाना है। इसलिए हम गैरों के मजमों में भी
कुरान की तिलावत पढ़ करके अपनी बात का आगाज करते हैं, और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो खुदा की कसम वो यूं कहते हैं कि आप जो कुरान पढ़ते हैं हमको यूं लगता है कि ये हमारे दिलों में उतर रहा है। वो तो कुरान कहता है ये दिलों में उतरने की चीज है, काश मुसलमान इसको अपने दिल में उतार ले, अपने दिल में इसको जगह दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दोनों मौजिज़ात के सिलसिले में जो तफसीली बातें पेश की गई हमारी जिंदगी में तिलावत का जज्बा नसीब फरमावे, और नीयत कर लो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रोजाना एक पारा कुरान की तिलावत करेंगे भाई, नीयत कर लो, अपनी मस्जिदों को कुरान की तिलावत से आबाद करो। ये लईन की इस खबासत का मुंहतोड़ जवाब है, और उससे हमारी जिंदगी में अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा और कुरान की मोहब्बत पैदा होगी। भोपाल में मदरसा अरबिया इस्लामिया एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, जहाँ 1000 से ज्यादा तलबा रहते हैं। ये हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब का कायम करदा इदारा, जिनसे खुदावंद कुद्दूस ने बहुत जबरदस्त काम लिया पूरे मध्य प्रदेश में। ये अल्लाह का नेक बंदा बहुत गली कोचे शहर शहर गांव गांव जाकर कुरान की नशो इशाअत के लिए जबरदस्त मेहनत की इन्होंने। वो अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। 1000 तलबा हैं, उससे ज्यादा, और 2.5 करोड़ का खर्चा है। वहां से उलमाए किरम तशरीफ लाए हैं, नमाज से फरागत के बाद ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से इस इदारे का भरपूर ताउन करने की आजीज़ाना दरखास्त है। अल्लाह तौफीक अता। मोहतरम हज़रात, चंद ज़रूरी ऐलानात हैं। जैसे ये मदरसे के चंदे के सिलसिले में ऐलान किया गया, भोपाल का सबसे बड़ा MP का दारुल है, इमदाद फरमाते जाएं। समाज में जिन हजरात ने अपनी खुशी से चंदे लिखवाए हैं, दूसरे हफ्ते का वक्त आ चुका है, बल्कि वक्त तो ऊपर चला गया। आजीज़ाना दरखास्त है, लिल्लाह लिखाई हुई रकम जल्द पहुंचाने की कोशिश करें। जिनसे कर्ज के मुतालबे किए गए, ये कुल उम्मत का सरमाया है, इस्लामी इत्तेहाद को मजबूत करने वाली बात है, यह हम सब की ज़रूरत की चीज़ है, यह हमारा भविष्य है। लिहाजा साथी से गुजारिश है, इस पर तवज्जो दें। वक्त गुजर जाएगा, जिनका अल्लाह कबूल कर लेंगे वो काम में लग जाएगा। ये एक ऐसा सायेदार घना दरख्त है, कसरत से फल देने वाला, कि जिसके फल की नस्लें मिठास इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देर तक महसूस करेंगे। एक दरख्त बोया गया है, एक दरख्त लगाया गया है, और उसकी शाखें निकलेगी, इस पर डालें आएगी, इस पर जो है फल आएंगे, और आने वाली नस्लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देर और दूर तक इनके फलों से नफा हासिल करेगी। समझ में आ जावे, बहुत जबरदस्त फायदे की चीज़ है। लिहाजा इसमें बढ़ चढ़ करके फौरी तौर पर मदद की आजीज़ाना दरखास्त की जाती है। बहुत ही मन्नत और समाजत के साथ कहते हैं मेरे बुजुर्गों, बहुत आजीज़ी के साथ, बहुत ही आजीज़ी के साथ दरखास्त करते हैं। डीजे, फटाकड़े, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बारात, ये इस्लाम में नहीं है। खुदा की कसम, पैगंबर की 23 साल जिंदगी में कोई एक वाक़या तो दिखाए कोई मुसलमान? इस्लाम में है ही नहीं आतिशबाजी, हराम है, परले दर्जे का कुफ्र है, बहुत खतरनाक चीज है। माशरा अगर बाज नहीं आया, खुदा की कसम अल्लाह का कहर बहुत करीब में है। बाज आ जाए, बाज आ जाए, अभी भी वक्त है। नंगे नाच, डीजे, बेमहाबा वीडियो, ये सारी चीजें इंसानियत की कातिल है। कोरोना वायरस बहुत जल्दी भूल गए, बहुत जल्दी। 100 से ज्यादा जिगर गोरे कब्रिस्तान के हवाले कर दिए, भूल गए, करीब ही में याद नहीं आता है। हाय हाय, ये समाज है, ये मुआशरा है। इसके लिए पैगंबर ने बदर, ओहद, अहज़ाब, हुनैन खेला था। इसके लिए पैगंबर 27 मरतबा गज़वात में उतरा था, 56 सराय भेजे थे, एक दूसरों को अखबार में उछालना। क्या इसीलिए पैगंबर ने 23 साल नबूवत मेहनत की थी? बहुत बुरा वक्त आ रहा है, संभल जाओ मेरे भाइयों, हाथ से रोको, समझाओ इनको। इनको समाज के होल देना भी गुनाह, इस पर पाबंदी है, हरगिज हरगिज नहीं दिया जाएगा। वो कमाई भी नाजायज है, रद्द कर दी जाएगी। इस्लाम भूखा नहीं है, न हम ढेरों के छमारों के हम मोहताज हैं, और न हम इनके कि हम जबरदस्ती धर्मांतरण कराएं इनका। हमारा इस्लाम बहुत पाकीज़ा है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं।
हमारा अल्लाह बेनियाज है, इस्लाम बेनियाज बदहद है। अगर हम इन शनाअतों से बाद नहीं आएंगे, मेरे बुजुर्गों, अजाब नजर आ रहा है, अजाब नजर आ रहा है, माहिरीन को अजाब नजर आ रहा है, दिल की आंख से देखने वाले को अजाब नजर आ रहा है। फिर सो के हजार जावे कब्रिस्तान, उस दिन से पहले पहले तौबा कर ले। अल्लाह को भी जला यादवती को अदीब सुल्तान, अल्लाह जिस मुआशरे में हम आँख खोल रहे हैं वह बेटी अधूरे कपड़े पहना कर आदम की बेटी है, हव्वा की बेटी है। अल्लाह हव्वा की बेटी अधूरे कपड़े पहन कर डांस करके डीजे लग रहा है, फटाकड़े फूट रहे, वो गाड़ियां चल रही है, फटाका फूट रहा है। ए अल्लाह, तेरी दी हुई दौलत है, तेरे भी फरिश्ते आसमान से कह रहे छोड़ खुदा इनको लुकमा बना ले। वो गोरे गोरिस्तान के होले हो गए, खुदा की कसम। परसों ही एक घर में 2 दिन का फाका था और घर में खाने का नहीं था, और 2 दिन से घर में खाना नहीं बना था। क्या जवाब दोगे इसी बस्ती में? हाँ हाँ मांगरोल दे, क्या जवाब देंगे? क्या आतश भरा उस कश्मीर की 16 साली बेटी को क्या जवाब देंगे जिसका बाप काटा गया, कीमा बनाया गया? वो कहती है मुसलमानों तुम कहां से गए हो? मेरे अल्लाह, जिस मुआशरे में हम आंखें खोल रहे हैं, तेरे अजाब का कोड़ा नारियली पर बरसा, तेरे अजाब का कोड़ा बस्ती अल्लाह तस्लीयों पर बरसा, तेरे अजाब का कोड़ा इंसानी पर बरसा, और इसका जवाब मुसलमान इस तरह दे रहा है। हाँ हाँ हमारी ही नस्ल जवाब दे रही है। खुदा हम नहीं बैठ सकते हैं, हम पर और जालिम आएगा जो हमें कीमा बढ़ाएगा। अभी तो यह इज्जतों के परचे उड़ा रहा है, अभी तो ये जलों के नजर कर रहा है। वो दिन आएगा कि फिर कीमा बनाएगा हमारी नस्लों के सामने, जैसे कश्मीर में बेटियों की नजर के सामने बम का कीमा बनाया गया। उसके लिए ये दिन यहां कहीं भी आ सकता है मेरा रब। जब डीजे गरजता है, तेरी जमीन थर्राती है और तेरा आसमान ऊपर से गरजता है। तेरे रब कल कब्र के साए तले सो जाएगा। लेकिन ये दूसरों को हलाकत और तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा है। हम तौबा करते हैं, कसूर हमारा है, हमने इल्म उन तक नहीं पहुंचाया है। अल्लाह तो पूछेगा तूने क्या खिदमत की इस दीन की? कुरान दिया था तूने क्या करके लाया? अल्लाह बहुत भारी हो जाएगा। अल्लाह तेरे दर और तेरे दर, उसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। दर भी निकल चुका और दर से भी लोग चले गए। न मस्जिद में आते हैं न दर है, सीना तान के जवान खड़ा हो जाता है। कौन मेरा क्या कर सकता है? अरे तेरा वो करेगा जिसने तुझे अदम से उचित बख्शा, तेरा वो करेगा जिसने तेरे बाप दादा को गोरे गोरिस्तान पहुंचाया, तेरा वो करेगा जिसने तेरी नस्लों को कारे मासबत में पहुंचा दिया है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो तेरे आजिज और जलील बंदे हैं और कुछ कर भी नहीं सकेंगे। करेगी तो तेरी साथ, हम तो कोई खुदा नहीं है कि करेंगे। अल्लाह तेरी खुदाई तो बहुत कुछ करती है, करेगी। अल्लाह 52,000 ने कुर्बानी दी, फिर भी आज तक तूने कुरान बाकी रखा। इंतहाई खतरनाक कारे मजल्लत में मुब्तला होकर इस नस्ल ने हिंदुस्तान में कुरान को बाकी रखा है। हमारे सियासी मैदानों पर इत्तेहाद का प्लेटफार्म लगा दे, हमारी समाजी लेवल पर इत्तेहाद का प्लेटफार्म नाफिज फरमा दे, हमारी मजहब पर इत्तेहादी प्लेटफार्म को मजबूत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हर एक फर्द उम्मत की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, बेकसूर जेलों की सलाखों के महबूसों को रहाई नसीब फरमा। जो तेरी जवारे रहमत में चले गए, करबत करबत मगफिरत फरमा, कब्रों को नूर से भर दे, रूहों को इल्लिय्यिन में दाखिल फरमा। बुरे दिन, बुरी घड़ियां, बुरा टाइम देखने से पहले इज्जत के साथ, ईमान के साथ, अपने अपने वक्त पर ईमान और उसने खातिमा के साथ तेरी रहमत का आगोश नसीब फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा, जिन जिन शुरूर से पढ़ना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। माशरे में अगर कुछ ऐसा हो तो गुजारिश है
ان کو ہاتھ سے روکا جائے، ان پر محنت کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ورنہ یہ وہ چیز ہے جو فوری عذاب کو اتار دیتی ہے۔ اے اللہ حفاظت فرما لے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا